बेंगलुरु के सारेपाला में ऑल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड का खुसूसी इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में रियासती वजीर कृष्ण बैरेगौड़ा और दीगर सियासी कायदीन को मदऊ किया गया था। इस इजलास में तकरीबन 29 अजला से उलमा इकराम ने शिरकत की। उलमा इकराम ने उलमा बोर्ड की जानिब से 9 मुतालबात पर मुबनी एक मेमोरेंडम भी पेश किया। रियासती वजीर कृष्ण बैरेगौड़ा के जरिए हुकूमत को दिए गए मेमोरेंडम में 9 मुतालबात किए गए थे, जिनमें बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों से रिहा करना और साथ ही मुस्लिम रिजर्वेशन को बहाल करना और उसे बढ़ाना, साथ ही साथ दादा हयात पहाड़ की दरगाह का मामला और दीगर कई मुतालबात इसमें शामिल किए गए थे। इस मौके पर एसडीपीआई के लीडर अब्दुल हन्नान भी शामिल रहे। इस सिलसिले में सुन्नी उलमा बोर्ड के सदर मुफ्ती शरीफुर रहमान और सेक्रेटरी एम रजवी और दीगर अहम मेंबरान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात फराहम किए हैं। ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಶಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಉಲೆಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಲೆಮಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಉಲೆಮಾ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು 2-3 ವಿಷಯಗಳು, ಒಂದು 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಉಲೆಮಾ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಕೇಸುಗಳು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಇರಬೇಕು ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಏನು ಹಿಂದೆ ಕೇಸುಗಳು ಆಗಿದಾವೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಕೇಸುಗಳು ಆಗಿದಾವೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಸುಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಅದು ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರಲಿ, ರೈತ ಸಂಘ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿ, ಸಂಘಟನೆ ಇರಲಿ, ಯಾರ ಮೇಲೇನೆ ದುರುದ್ದೇಶ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಸುಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು 4% ಮೀಸಲಾತಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಹೋದ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದಿದೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರದ್ದು ಹಕ್ಕು ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಬಡತನ ಇರುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕೇಸನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಉಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮಿಂದಾನು ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಅಂತದ್ದು ಏನು ತಪ್ಪಾದಾಗ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. मैं सुन्नी उलमा बोर्ड का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ. कई दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि सुन्नी उलमा बोर्ड की एक मीटिंग बुलाई जाए
वो मीटिंग में ये तय हुआ कि जो मेमोरेंडम हैं, कुछ मेमोरेंडम जो नौजवान लड़के जो जेलों में हैं, उनके लिए बोर्ड की तरफ से एक मेमोरेंडम बनाया गया और हम लोग रिजवान अरशद साहब को, ज़मीर अहमद साहब को, यूटी खादर साहब को और रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बैरेगौड़ा, इन सारे मिनिस्टरों को मदऊ किया था। उसमें से कुछ वजूहात की बुनियाद पे ज़मीर अहमद साहब और रिजवान अरशद साहब ने वहाँ से मैसेज किया कि वो अर्जेंट कोई मीटिंग आ गई उनकी, चले गए। बैरकब कृष्ण बैरेगौड़ा साहब आए थे, उनको हमने मेमोरेंडम दिया। वो मेमोरेंडम में कई मामलात उनके सामने रखे गए, हिजाब का मसला हो या 4% रिज़र्वेशन का मसला है, और बिलखुसूस हमारा जो दबाव आज का था, ये जो नौजवान इनोसेंट मुसलमान जो डीजे हल्दी, केजी हल्दी के मामलात में जो जेल में हैं तकरीबन 2020 से, तो उनकी रिहाई के लिए हमने एक मेमोरेंडम दिया है। तो उन्होंने मेमोरेंडम को एक्सेप्ट करके कहा कि हम असेंबली में इसको रखेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन का मामला है। उन्होंने वादा भी किया है कि ज़रूर वो असेंबली में इस मामला को रख करके फिर इसकी कार्रवाई ज़रूर होम मिनिस्टर और सीएम के पास ले जाएंगे। अब फिर देखेंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा हमारी ये बोर्ड की एक मखसूस मीटिंग है जिसमें पूरे कर्नाटक के 29 डिस्ट्रिक्ट के अमायदीन और उलमा इकराम आए हुए हैं। हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे अमल कर रहे थे। इससे पहले भी हुकूमत के सामने हमने मुतालबा रखा था कि सुन्नी उलमा बोर्ड ने जिस तरह पूरे कर्नाटक स्टेट में हमारे 8000 उलमा हर डिस्ट्रिक्ट में इसके नुमाइंदे हैं, तो हमने हुकूमत का कांग्रेस हुकूमत को बनाने में हमने भरपूर साथ दिया है और 98% मुसलमानों ने कांग्रेस हुकूमत को इक़्तिदार पे लाने में ताउन किया है, साथ दिया है। तब हुकूमत का फ़र्ज़ और उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस तरह हमने साथ दिया है तो मुस्लिम काज के लिए हमारा भी साथ दे, चूँकि ताली दोनों हाथ से बजती है। अब इससे पहले चीफ मिनिस्टर ने हिजाब के मसले के ऊपर बयान दिया कि हिजाब का मसला अब ख़त्म हो गया, लेकिन जब यहाँ फ़िरका परस्त पार्टियों ने एहतजाज किया तो एहतजाज करने के बाद वो यू टर्न ले लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों के जो जायज़ मुतालबात हैं उन तमाम मुतालबात को हुकूमत तस्लीम करे। हुकूमत चूँकि आइंदा भी बहुत सारे मराहिल हुकूमत के पास आने वाले हैं, तो जो हमने मुतालबा किया है वो मुतालबा हमारा पूरा करे। दूसरी बात कि हमारे ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर हैं, हाउसिंग मिनिस्टर हैं, वो घर बना करके तकसीम दे रहे हैं। तो मेरा उनसे मुतालबा है कि अइम्मा इकराम जो 10,000 12,000 रुपये तनख्वाह पे अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, तो इनकी तरफ भी ख़ास तवज्जो दे और उलमा के लिए एक उलमा कॉलोनी बना करके जिन उलमा के पास मकान नहीं है उनको भी मकान देने की कोशिश करें। इसमें अहम नुकात ये हैं कि आज जो उलमा इकराम मौज़िनीन के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है ये बिल्कुल कम है, और हमारा ये डिमांड है कि मौज़न के लिए 8,000 रुपये और आलिम दीन के लिए 10,000 रुपये माहाना हुकूमत की तरफ से दिए जाए। और डीजे हल्दी और दीगर रियासती कर्नाटक के अंदर जहाँ जहाँ भी कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, फसादात हुए हैं, उसमें जो लोग इनोसेंट हैं उनको हुकूमत की तरफ से वो केसेस को विथड्रा किया जाए। और हमने ये भी मुतालबा किया है कि नक़ाब का मसला है, ये नक़ाब के मसले को हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया है, फिर भी इसके बावजूद उसे एक क़ानूनी शक्ल दे दी जाए। और इसके साथ साथ बोर्ड, क्योंकि रियासत गिर सतह का बोर्ड है और ये बोर्ड के लिए हमारे पास फिलहाल कोई मीटिंग हॉल के लिए या ऑफिस के लिए जगह नहीं है, इस पर भी जो है जगह का हमने मुतालबा किया है। और दीगर मुतालबात 4% का मसला है,
4% जो रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए दिया गया था, हमने हमारे मेमोरेंडम में इसे 10% करने का गुजारिश की है। और जो 4% पिछले हुकूमत से दिया जा रहा था और पिछली हुकूमत ने इसे ये 4% को जो है निकाल दिया है, तो हमारी ये गुजारिश है कि उसे बहाल करके 10% किया जाए और दीगर भी हमारे मुतालिबात हैं। और इसके साथ साथ दादा हयात मीर खलंदर बाबा बुडनगिरी का भी बहुत अहम और एक सुलगत एक बहुत ही सीरियस मसला है। ये बहुत ज़माने दराज से ये लीगल मसला भी चल रहा है वहाँ पर। और ये हमारे शाहिद रज़ा साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के चिकमंगलूर के चेयरमैन हैं। और हज़रत क़िबला जो है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरीफुर रहमान साहब ऑल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड ट्रस्ट रजिस्टर के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये भी अब अभी आप हजरात से ख़िताब करेंगे। अब वहाँ पर जो है हुकूमत की तरफ से एक कमीशन कायम किया गया है, एक कमेटी, और एक 5 रुकनी कमेटी है, जिसमें से कृष्णा बैरेगौड़ा भी एक मेंबर हैं। अब उनको जो है वहाँ के चेयरमैन साहब भी हैं और कंजुल ईमान दारुल उलूम के ये सदर भी हैं। ये मेमोरेंडम दिया गया है कि क्या कौन सा कमीशन हो, नागमोहन दास कमीशन की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के तहत जो है ये मामले को हल किया जाए। और वहाँ के जो सज्जादे हैं सैयद साहब क़िबला, वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है हमारी ये 5 रुकनी कमेटी जो रियासत के मिनिस्टरों को लेकर बनाई गई है, वो जो है अपना हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। और ये कमीशन के तहत जो फ़ैसला लिया गया है, जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, इस पर वो अमल पैरा करें, ये हमारी उनसे गुजारिश है। इसके ताल्लुक़ से भी जो है हमने मेमोरेंडम पेश किया है। तमाम सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़िम्मेदार हजरात हमें भी मदऊ किए थे, तो इस तकरीब में शामिल होकर बहुत खुशी हुई। यहाँ के MLA और मिनिस्टर बैरेगौड़ा साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और दीगर ज़िम्मेदार हजरात अमायदीन भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। हम इस मीटिंग से उम्मीद करते हैं कि अब जो होने वाली उम्मीद में मिली और समाजी तमाम सब्जेक्ट्स पर इंशाल्लाह ज़रूर चर्चा होगी, चूँकि मुल्क के अंदर, मिल्लत के अंदर खुसूसन फ़ैसले आ रहे हैं, इंसाफ नहीं आ रहा है और जुल्म हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे मामलात हैं। तो यहाँ पर नौजवानों को बेदार करने की और तमाम तंजीमों को मिलजुल कर सब्जेक्ट्स को राइज करने की और इंसाफ हासिल करने की कोशिश करना है। तो इन तमाम चीज़ों में हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदार हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सुन्नी उलमा बोर्ड जो जमा हुए हैं, हम लोगों को एक दावत देकर हमें बुलाया है। एक वकला होने के नाते से आज जो हालात जो चल रहे हैं, उस हालात के हिसाब से हम लोगों को वकला को आगे बढ़कर हम लोगों को काम करना है। यही कमेटी के मेंबर से भी बहुत से एडवोकेट्स हैं, इनसे मुलाकात होकर चर्चा हुआ है। आइंदा इंशाल्लाह उनकी मीटिंग में जो चर्चा होगा तो इसके बारे में भी ये लोग ख़ास तवज्जो देकर इसमें चर्चा करेंगे।